Good morning, my dear student. Today we are going to start class 11th history, chapter 7. Chapter 7 is the changing culture and tradition. In this chapter, we are reading about the 14th to 17th century the European society. We are also observing here the changing culture and traditions during that time. That time is called Renaissance. The Italian revival also we have read. The Venice and Geneva and their conditions that was controlled by the fourth order, not third order, not second order and first order, because that city was developed as a trade city, as a city state. Okay, the next topic in this chapter, the universities and humanism. We are going to start this chapter, the universities and humanism. The earliest universities in Europe had been set up in Italian towns. The universities of Padua and Bologna had been centers of legal studies from the 11th centuries, commerce being the chief activity in the city. There was an increasing demand for the chief activity city. There was an increasing demand for the lawyers and notaries, the combination of the solicitors and record keepers to write and interpret rules and written agreements without which trade on a large scale was not possible. Law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift of emphasis. It was studied in the context of the earlier Roman culture. Francisco Petrarch, 1304 to 78, represented this change to Petrarch antiquity was distinctive civilizations which could be best understood through the actual world of the ancient Greek and Roman. He therefore stressed the importance of the close reading of the ancient authors. Dear student, the earliest university in Europe had been set up in the Italian cities. The University of Padua and Bologna had been the center had been of legal studies from the 11th century. Bologna और पाडुआ यूनिवर्सिटीज लीगल स्टडीज़ के लिए विधि शास्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में 11th सेंचुरी के रूप में डेवलप हुए. Commerce being the chief activity in the city. Actually, the trade developed, or we can say that trade was in the phase of developing, so that's why commerce being the chief activity in the city. There was an increasing the demand for lawyers and notaries. इसीलिए वहाँ पे एक बड़ी मांग थी लॉयर्स की और नोटरीज जो नोटरी लिखते थे उन दोनों चीज़ों की वहाँ पे थी. इसका कारण सब जो विधिशास्त्र के रूप में विकसित होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये नगर औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहे थे, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहे थे, कमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप हो रहे थे, और इसीलिए वहाँ पे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी जो लीगल स्टडी के अच्छे जानकार हों, लॉयर हों, और साथ ही साथ जो इन नियम और कानूनों को लिखने वाले हों, रिकॉर्ड कीपर, सॉलिसिटर्स हों. उन लोगों की डिमांड इस क्षेत्र में बढ़ने लगी. यही वो कारण था कि नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधित थे और वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी क्योंकि वे नियमों को लिखते थे, इनकी व्याख्या करते थे और समझौते तैयार करते थे. इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था. इट मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ द लायर्स एंड द रिकॉर्ड कीपर्स एंड इंक्लूडिंग सच टाइप ऑफ पीपुल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू क्या एक बड़ा व्यापार करने के लिए ये संभव ही नहीं था कि बिना इसकी मदद के हो सके.
यही कारण था कि कानून का अध्ययन, लॉ स्टडी, एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में बदलाव आया। रोमन संस्कृति के संदर्भ में ये एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। फ्रांसिस्को पेट्रार्क इन परिवर्तनों के प्रतिनिधित्व करते थे। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः पेट्रार्क ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। पेट्रार्क stressed the importance of the close reading of ancient authors. The Petrarch Antiquities was the distinctive civilization which could be best understood through the actual word of the ancient Greek and Roman. पेट्रार्क इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं रोम की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके पढ़े कानून की व्याख्या ठीक से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए पेट्रार्क बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं कि हमें इसके अध्ययन को ठीक ढंग से करना चाहिए। वी हैव टू डू स्टडी, हमें वेरी केयरफुली। विदाउट इट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द लीगल रूल्स, द एजुकेशनल प्रोग्राम implied there was much to be learned which religious teaching alone could not give. This was the culture which historians in the 19th century were to label humanism. By the early 15th century, the term humanist was used for masters who taught grammar, the rhetoric, poetry, history, and moral philosophy. The Latin word humanitas, from which humanities was derived, has been used many centuries ago by the Roman lawyer and essayist, the Cicero, a contemporary of the Julius Caesar, to mean the culture. These subjects were not drawn from to connected with religion and emphasize skill developed by individuals through discussion and debate. एजुकेशनल प्रोग्राम, जो शिक्षा कार्यक्रम था, एजुकेशनल प्रोग्राम में ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। implied that there was much to be there was much to be learned which religious teaching alone could not give. This was the cultural which historian in the 19th century were to be labeled humanism. इस शिक्षा कार्यक्रम में सबका बहुत कुछ अभी जानना बाकी था। सब केवल धार्मिक शिक्षण से ही नहीं सीखते हैं, रिलीजियस नॉलेज से ही सभी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा उनका विश्वास था। दिस वाज द कल्चर विच हिस्टोरियन इन द 19th centuries वर टू बी लेबल ह्यूमनिज्म। और ये जो विश्वास था कि सब कुछ धर्म में, धार्मिक ग्रंथ में जो चीज़ें दी गई हैं वही सिर्फ एक्चुअल नॉलेज नहीं है, बल्कि इससे इतर भी कुछ नॉलेज है, उन्हें भी जानना जरूरी है। ये जो उनका विश्वास था, यही नई संस्कृति को 19th सेंचुरी में नाम दिया, इसी विश्वास को मानवतावाद, ह्यूमनिज्म कहा। बाय द अर्ली 15th century द टर्म ह्यूमनिटास वाज यूज्ड फॉर द मास्टर हु टॉट ग्रामर, रिटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलॉसफी। 15th सेंचुरी की शुरुआत में ह्यूमनिज्म जो वर्ड था, ह्यूमनिटास शब्द से बना, जिसे कई शताब्दी पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो जूलियस सीजर के समकालीन थे, संस्कृति के अर्थ में लिया। और इसे पढ़ाने वाला मानवतावादी शब्द जो टीचर्स के लिए यूज होता था, ऐसे टीचर्स के लिए जो ग्रामर पढ़ाए, जो रिटरिक पढ़ाए, अलंकार शास्त्र पढ़ाए, जो पोइट्री पढ़ाए, जो हिस्ट्री पढ़ाए, जो फिलॉसफी पढ़ाए, इन टीचर्स को ह्यूमनिटिस्ट कहा जाता था। और यहीं से एक नई कल्चर का विकास हुआ और इस ह्यूमनिज्म को एक नए कल्चर चेंज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, जो रिलीजियस सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग था।
और वो इस बात पे बल देता था कि नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस सब्जेक्ट वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विथ रिलीजन एंड एम्फसाइज्ड स्किल्स डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। वो ह्यूमैनिटीज डिस्कशन और डिबेट को एम्फसाइज करता था, तर्क के आधार पे ज्ञान की बात करने का काम ह्यूमैनिटीज करता था, और ये धार्मिक नॉलेज से बिल्कुल अलग था, ऐसा उनका विश्वास था। These revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly in the newly established university in the Petrarch's own hometown of Florence. Till the end of the 13th century, this city had not made a mark as a center of trade, of learning. But things changed dramatically in the 15th century. A city is known by its great citizens as much by its wealth. These revolutionary ideas, ये क्रांतिकारी विचार attracted attention in many other universities. इस क्रांतिकारी विचार ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को अपनी तरफ आकर्षित किया, particularly in the newly established university in the Petrarch's hometown Florence. जो पेट्रार्क के होम टाउन फ्लोरेंस में इस्टेब्लिश हुआ था, उनको खास तौर से अट्रैक्ट किया अपनी इस विचारधारा के लिए कि ह्यूमैनिटीज़ का मतलब एक ऐसा ज्ञान जो धर्म से इतर है, और ह्यूमैनिटीज़ का मास्टर अलंकार, शास्त्र, पोइट्री, हिस्ट्री, फिलॉसफी का टीचर, मास्टर होगा, और इनका पूरा नॉलेज डिस्कस और डिबेट पे बेस्ड होगा। इन चीज़ों को अदर यूनिवर्सिटीज़ ने भी एक्सेप्ट किया। टिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी के अंत तक द सिटी हैड नॉट मेड ए मार्क एज द सेंटर ऑफ द ट्रेड ऑफ द लर्निंग। सिटी जो शहर था फ्लोरेंस, ये एक फ्लोरेंस जो सिटी थी वो किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता भी बनाती है, और 15th सेंचुरी में ये बदलाव दिखाई दे रहा था। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें एक व्यक्ति था दांते अलिघियरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं था। उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति कलाकार जीटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। जो ये रूप चित्र, जो पोर्ट्रेट थे, ये पहले के कलाकारों की तरह से बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगरों के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ पे कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता था जिसकी अनेक रुचियां हो, अनेक हुनर हो, जिसमें उसने महारत हासिल की हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता था, और ऐसा ही व्यक्ति जो कई सारे विषयों में महारत हासिल किया हो, एक्सपर्ट हो, वो रेनेसां मैन कहा जा सकता था। तो इस तरह के विचार डेवलप हुए। टिल द एंड ऑफ 13th century, the city had made marked as a center trade of the learning, but things changed dramatically in the 15th century. A city is known by the great citizens as much by its wealth. The Florence had come to be known because of Dante Alighieri, a layman who wrote on the religious themes, and Guido, an artist who painted lifelike portrait, very different from a stiff figure done by earlier artists. गीटो ने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए जो जीवंत थे। दांते एलिघरी ने इन बातों पर जोर दिया, जो धार्मिक व्यक्ति नहीं था लेकिन फिर भी उसने धर्म पे अपनी किताबें लिखी।
द वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द स्टिफ। जो गीटो के पोर्ट्रेट थे वो पुराने कलाकारों से पूरी तरीके से डिफरेंट थे। फ्रॉम द फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट exciting intellectual city in the Italy and as a center of artist creativity. The term Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills because many of the individuals who become well known at this time were people of many parts. They were scholars, diplomats, theologian, artist combined in one. It means a man who combined in one as a scholar, as a diplomat, as a theologian, artist. He called what? The Renaissance man. रेनेसांस मैन वो आदमी कहा जाता था जिसके अंदर कई सारी विषयों की महारत थी, कई सारी विषयों का जानकार था। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वेर द रिस्टोरिंग द ट्रू civilization after centuries of darkness, for the belief that a dark age had set in after the collapse of the Roman Empire. Following them, later scholars unquestioningly assumed that a new age had begun in Europe from the 14th century. The term Middle Age, the medieval period, was used for the millennium 1000 year after the fall of Rome. In the Middle Age, they argued the church had such complete control over man's mind that all the learning of the Greeks and Romans had been blotted out. The humanists used the word modern for the period from the 15th century. The periodization used by humanists and by later scholars. 5th to 14th century, the Middle Age. 5th to 9th century, the Dark Age. 9th to 11th century, the Early Middle Age. 11th to 14th century, the Late Middle Age, and 15th century onwards, the Modern Age. This is the dividation. The humanist used the word modern for the period from the 15th century. The periodization used by humanist and by later scholar. उन्होंने यूरोपियन इतिहास को इन दो कालों में बांट दिया। 15th to 14th सेंचुरी को मिडिल एज कहा और 15th सेंचुरी के बाद का पूरा समय मॉडर्न एज कहलाता है। 15th सेंचुरी में 5th to 9th सेंचुरी डार्क एज, 9th to 11th सेंचुरी अर्ली मिडिल एज, 11th to 14th सेंचुरी द लेट मिडिल एज के नाम से जाना गया। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो मानवतावादी विचारधाराओं की बात करता है, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण पे बात करता है। कहता है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है वो क्या है। तो कहता है कि ह्यूमनिस्ट ऐसा सोचते हैं, ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग द ट्रू सिविलाइजेशन, कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे ये मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ, डार्क एज का शुरुआत हुआ, darkness, for the belief that dark age had to set in after the collapse of the Roman Empire. Following them, the later scholar, the unquestioningly assumed that the new age had begun in Europe from the 14th century. बाद के इतिहासकारों ने, मानवतावादियों की बाद के विद्वानों ने भी कोई प्रश्न उठाए या मान लिया यूरोप में 14th सेंचुरी के बाद ही जो न्यू एज का विकास हो रहा है वो सही है। मिडिल एरा जैसे संज्ञाओं का प्रयोग, मिडिल एरा जैसे वर्ड का यूज, द मिडिल एज, द मिडिल पीरियड वाज यूज्ड फॉर द मिलेनियम 1000 ईयर आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। मिडिल एरा को जो वर्ड था, ऐसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया। इसके बाद यह तर्क था कि मिडिल एज में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था मिडिल एरा में
कि यूनान और रोम वासियों के समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। इट मीन चर्च हाईली इन्फ्लुएंस the Greek people and the Roman peoples, that they were not think about that what is the actual knowledge. They were influenced with the religious knowledge. चर्च ने पूरी तरीके से उनके दिमाग पे कंट्रोल कर लिया था। ह्यूमनिस्ट ने आधुनिक शब्द के प्रयोग 15th सेंचुरी के प्रारंभ में किया। इन्हीं ह्यूमनिस्ट ने कुछ वर्ड का यूज किया, पीरियडाइजेशन कर दी, जो बाद के कालों में भी एज इट इज चलती रही। 5th to 4th सेंचुरी मिडिल एज एंड 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द मॉडर्न एज का। 5वीं से 14वीं शताब्दी मध्य युग और 15वीं शताब्दी के बाद का सारा काल आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। रिसेंटली द हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन दिस डिवीजन। हाल ही में कुछ इतिहासकारों ने जो ये डिवाइडेशन से पीरियडाइजेशन से उस पर क्वेश्चन किया। इस काल में यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोज और शोध बढ़ते गए, वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि का आधार मानकर जो ये तीक्ष्ण विभाजन करके जो जो ये पीरियडाइजेशन की गई थी, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी और किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना वो सही नहीं मानते थे। एज लाइक 5th to 9th सेंचुरी डार्क एज के रूप में ह्यूमनिस्ट ने माना था। इस बात को रिसेंटली जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसमें अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा कहना सही नहीं होगा। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना सही नहीं है। इट इज आवर लाइकनेस दैट वी हैव नॉट कलेक्टेड, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर एज, particular time, history. So behalf of that, we cannot say that this age is a dark age. It's so our likeness. So recently, historians have questioned this division. Next topic, science and philosophy, the Arab contribution. It is also very important. The science and philosophy, the Arab contributions. Much of the writings of the Greek and Roman had been familiar to monks and clergymen through the Middle Age, but they had not made these widely known. In the 14th century, many scholars began to read translated work of Greek writers like Plato and Aristotle, for they were the indebted not to be their own scholar, but to Arab translators who had carefully preserved and translated ancient manuscripts. Plato was of Platon and Aristotle in the Arabic. While some European scholars read Greek in the Arabic translations, the Greek translated work of Arab and Persian scholars for further transmissions of other Europeans. These were works on the natural science, mathematics, astronomy, medicines, and chemistry. Ptolemy's Almagest, a work on astronomy written in Greek before 140 CE and later translated into Arabic, carries the Arabic definite article al, which bring out the Arabic connections. Among the Muslim writers who were regarded as a man of wisdom in the Italian world were Ibn Sina, the Avicenna in Latin 1918 to 1037, Arab physician and philosopher of Bukhara in Central Asia, and Al-Razia, authors of the medical encyclopedia Ibn Rushd, and Arab philosophers of Spain tried to resolve the tension between the philosophical knowledge, falsuf, the religious beliefs. His method was adopted by the Christian thinkers. Humanists reach out the people in the variety of way, though the curricula in the universities continues to be dominated by law, medicines,
and theology. Humanist subjects slowly began to be introduced in schools, not just in Italy, but in other European countries as well. Here, the contributions of the Arab इन साइंस एंड फिलासफी, साइंस ऑफ फिलासफी में अरब के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में ऑथर आपको इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि मच ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन्स हैड बीन फेमिलियर टू मॉन्क्स एंड क्लैर्जीमैन थ्रू द मिडिल एज, बट दे हैड नॉट मेड दिस वाइडली नोन। पूरे मिडिल एरा में जो क्लैर्जी और चर्च और मठों के जो विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, इन पर लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं सेंचुरी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो, अरिस्टोटल के ग्रंथों से अनुवाद को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं हैं, बल्कि वे अरब ट्रांसलेटर्स के ऋणी हैं, जिन्होंने इन प्राचीन किताबों को, अरिस्टोटल्स के, प्लेटो की किताब को ट्रांसलेट किया, उनको प्रिजर्व किया और उनको एक नए स्वरूप में ट्रांसलेट करने के बाद प्रस्तुत किया, सावधानीपूर्वक, केयरफुली उन चीज़ों को दिया। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथ के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। एक और while the some European scholars read Greek in Arabic translation, the Greek translated works of Arab and Persian scholars for further transmissions to other Europeans. एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथ के अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूनानी विद्वान और अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये सारे जो ग्रंथ थे, these were works on the natural science, mathematics, astronomy, medicine and chemistry. Ptolemy's Almagest, a work on astronomy written in Greek before 140 CE and later translated into Arabic, carries the Arabic definite article al, which bring out the Arabic connections. ये जो टेक्स्ट थे, ये जो नेचुरल जो ग्रंथ थे, विज्ञान, गणित, भूगोल, ज्योग्राफी और औषध विज्ञान, मेडिसिन और केमिस्ट्री पे लिखी हुई किताबें थी। इन लोगों ने जो काम किया, उस मैथमेटिक्स पे काम किया, केमिस्ट्री पे काम किया, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, मेडिसिन पे इन्होंने काम किए। और ये काम, उनका जो ये वर्क था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। टालमी का अलमजेस्ट जो एस्ट्रोनॉमी पे लिखी ग्रंथ है 140 CE में यूनानी भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। तो ये अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख जो इसमें मिलता है वो यूनानी और अरबी भाषा के बीच संबंधों को दर्शाता है, रिलेशंस को दिखाता है। अल इट मीन्स अरेबिक एंड यूनानी रिलेशन, दोनों की बॉन्डिंग्स को दिखाता है। और फिर मुसलमान लेखों ने इटालवी दुनिया में उनको बहुत सम्मान मिला, उन्हें एक ज्ञानी पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। और ये जो नॉलेज था उनका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। They regarded as a man of wisdom in the Italian world. अरबी में हकीम, मध्य एशिया में बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसिना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रजेश सम्मिलित थे। इन विद्वान मुस्लिम लेखकों में जिन्हें इटली की दुनिया में महान ज्ञानी माना जाता था। स्पेन के जो अरेबिक फिलासफर्स इब्न रुश्द, लैटिन में अविरोज ने दार्शनिक ज्ञान, फलसुफ और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों ने भी अपनाया, क्रिश्चियन थिंकर्स ने उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया। और इस प्रकार जो ह्यूमनिस्ट बातें थी
लोगों को तरह तरह से समझ में आने लगी। द ह्यूमनिस्ट रीच्ड आउट टू द पीपुल इन द वैरायटी ऑफ वे, बहुत सारे तौर तरीकों से, बहुत सारे माध्यम से ह्यूमनिस्ट विचारधारा लोगों तक पहुंचने लगी। थर्ड, द curricula in the universities contain to be dominated by law, medicines and the theology। यद्यपि विश्वविद्यालयों में जो सिलेबस थी, करिकुला थी, करिकुला पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र पर दबदबा रहा, फिर भी जो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स थे धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ इनका विकास। इट मीन्स ह्यूमनिस्ट रीच्ड आउट द प्लेस, humanist subjects slowly began to be introduced in the schools, not just in Italy but in other European countries as well। कब? Though the curricula in the universities continued to be dominated by law, medicine and theology, humanist subject slowly began to introduce in schools। विश्वविद्यालयों में अभी भी धार्मिक विषयों की महत्ता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बदलाव का वो चरण था जब विश्वविद्यालयों में इन्हें पढ़ाया जाने लगा, ह्यूमनिस्ट सब्जेक्टों को भी पढ़ाया जाने लगा, जिसमें लॉ, थियोलॉजी और ग्रामर, इन तरह के सब्जेक्टों को विश्वविद्यालय में बड़े ही ध्यान से पढ़ाया जाने लगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।